Hello, students. Today let us start a very important topic, that is financial statement. So, we have read journal, ledger, depreciation, posting, adjustment entries, and everything. Now, the final thing that comes up and final statement which a business waits for is the financial statement. So this includes a combination of trading, profit and loss account and the balance sheet. This shows actually कि पूरे साल में एक बिजनेस उसने कैसा परफॉर्म किया. So whether it is making profit or it is running into losses. So ये जो financial statement बनता है उससे हमें पता चलता है कि बिजनेस का क्या स्टेटस है. So the financial statements are the statements that present an actual view of the financial performance of an organization. तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी कवर करेंगे, फॉर्मेट्स देखेंगे और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कई वीडियोस होंगे क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत लंबा सा है. तो आज हम लोग थ्योरी पोर्शन थोड़ा देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि है क्या ये चीज. So, financial statement serves as a means of communication, informing about the profitability and the financial position of the business. So, profitability पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जिसमें पूरे खर्चे, पूरे साल के जितने भी खर्चे होते हैं उसकी अकाउंटिंग होती है. एंड बैलेंस शीट विच शोज हाउ मच एसेट इज देयर फॉर द बिजनेस, हाउ मच इट ओज टू द आउटसाइडर्स, क्या प्रॉफिट हुआ है, ये depict करता है. So now financial statements, they are prepared from the trial balance. Accounts in the trial balance are transferred either to the trading account or the profit and loss account or the balance sheet. So इसको जो ट्रांसफर करने का क्या तरीका है, क्या रूल्स है. So all the entries that are of revenue nature, they are posted into the trading account and profit and loss account. और जो कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं उसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है. So it is necessary to understand and classify correctly whether an entry in the trial balance is of revenue nature or of capital nature. तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर द कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो कैपिटल रिसीट्स आर दोज irregular receipts that don't affect the profit and loss of a business. It either increases the liabilities or reduces the fixed assets. So it will be shown in the balance sheet. So इसका मतलब क्या होता है, जैसे reduces the fixed asset, या कोई भी fixed asset है उसको मैंने सेल किया, so उससे जो पैसा आया that is not a regular income, वो कभी कभार ही होता है. So that is a capital receipt. या हमने लोन लिया है तो उसको यूज करेंगे हम, सिर्फ एक ही साल में उसको यूज नहीं करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अ नंबर ऑफ ईयर्स और जिसमें हम यूज करेंगे. सो इसका नेचर कैपिटल होता है. क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल जो रिसीट्स होते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो सिर्फ एक साल के लिए ही नहीं होता है. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फ्यू नंबर ऑफ ईयर्स. नाउ रेवेन्यू रिसीट्स on the other hand, they are received in normal or regular course of business, like receipt from sale of goods, rendering services to customer. इस तरह के जो इनकम होते हैं उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं. और इसके अलावा भी जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, ये सारे जो रिसीट्स हैं वो होते हैं रेवेन्यू रिसीट. नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर whose benefit is derived by the business for more than a year is called capital expenditure. It includes the amount spent or liabilities incurred to acquire or improve any fixed asset or acquiring any legal rights, or expenses incurred to acquire patents, trademark, और कोई installation expenses, carriage या first time expenses incurred on second hand fixed asset. इसका मतलब होता है जो भी खर्चे जो हम मशीनरी को, सपोज कोई मशीनरी हमने खरीदा और उसको हम वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए बहुत सारे खर्चे करते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन के खर्चे हो गए, कैरेज इनवर्ट्स हो गया, उसका डिलीवरी चार्जेस हो गया. तो ये सारे खर्चे जो मशीनरी
से रिलेटेड होते हैं, जो उसको इंस्टॉल करने में, जो उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्चे हम लोग करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब एक छोटा सा कंपैरिजन हमने लिखा है। सी, द पर्पस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बताया। इस तरह के जो कैपिटल खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो उस तरह के खर्चे जो बिजनेस को रन करने के लिए डेली के खर्चे होते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। Now capacity is incurred for producing finished goods, and this is for increases the earning capacity of the business. अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे खर्चे जो हम एक फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स जो खर्चे करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिससे हम अपना प्रोडक्शन के जो भी खर्चे होते हैं और डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उसको हम रेवेन्यू नेचर का बताते हैं। और उस तरह के खर्चे जो हम फॉर अर्निंग द, इस तरह के खर्चे जो हमारा अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, उस तरह के खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, सो पीरियड होता है, इट्स बेनिफिट इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, रेवेन्यू खर्चा, और कैपिटल के एक्सपेंडिचर है, इट्स बेनिफिट एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर। रिकॉर्डिंग होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एंड कैपिटल एक्सपेंसेस में एसेट अकाउंट इज डेबिटेड। सो नेचर ऑफ अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, हियर इट इज रियल अकाउंट, एंड वेयर इज इट शोन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम रेवेन्यू के खर्चे को डालते हैं, और कैपिटल के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले सारे खर्चे हम बैलेंस शीट में डालते हैं। नाउ एक और तरह का एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये किस तरह का होता है? इसका नेचर होता है रेवेन्यू, सो एक्सपेंडिचर विच इज रेवेन्यू इन नेचर, लेकिन इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है जिसको हम एक साल में राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसको हम स्प्रेड आउट करते हैं, कुछ 2-4 सालों में उसका एक एस्टिमेट बना लेते हैं कितने सालों में इसका खर्चे को हम राइट ऑफ करेंगे। तो जो हर साल में जो राइट ऑफ होता है उस खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसको हम बैलेंस शीट में डालते हैं एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो जो खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और जो बाकी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एसेट, उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में डालते हैं। Okay, so expenditure which is revenue in nature but heavy amount spent and benefits likely to be derived over a number of years. Example होता है heavy expenses on advertising on launching of a new product. Hence it is capitalized like any fixed asset. So हम शुरू करते हैं पहले trading and profit and loss account से. So business needs to prepare a trading and profit and loss account first. और उसके बाद फिर हम इसका, पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसका बैलेंस हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम ले जाते हैं बैलेंस शीट में, एंड देन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। सो मोटिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू डिटरमिन द रेवेन्यू अर्न और द लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट कंसिडर करता है ओनली द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या जो भी एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं, या जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, या जो रिलेटेड डायरेक्टली टू परचेज ऑफ गुड्स होते हैं, ये सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में अकाउंट किए जाते हैं। बाकी जितने भी खर्चे हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। सो आइटम्स दैट आर सीन इन द डेबिट साइड इंक्लूड परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वाइल क्रेडिट साइड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में यूज होते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो होता है आइदर ग्रॉस प्रॉफिट, अगर हमारा डेबिट में अगर हमारे सेल बहुत ज़्यादा है और परचेजेस कम है, खर्चे कम है, तो ये प्रॉफिटेबल हो जाता है, तो प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, सो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक।
इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। तो अगर हमने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। एंड नेट सेल्स क्या होता है? ग्रॉस सेल्स ऑफ द बिजनेस माइनस सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट एंड अलाउंसेस। सो हमने कुछ सेल किया, उसमें से कुछ गुड्स हमारे रिटर्न में आ गए, तो उसको माइनस करने के बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड द नेट सेल्स। सो हम फॉर्मेट जरा देख लेते हैं। ये होता है बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ये डेबिट क्रेडिट लिखना ना भूलना। पर्टिकुलर्स टू ओपनिंग स्टॉक, ये टू ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक मतलब जो भी स्टॉक हमारा पिछले साल से आ रहा है उसको हम ओपनिंग स्टॉक में डालते हैं। उसके बाद हमने परचेज किया, परचेज करने के बाद हमारे कुछ गुड्स अगर खराब हुए तो उसको मैंने रिटर्न किया, तो उसके लिए परचेज रिटर्न को हम परचेजेस से लेस करेंगे। उसके बाद वेजेस कम्स इन ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वेजेस इन्वॉल्व होता है, लेबर को जो मिलता है वो वेजेस होता है। ये लेबर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री में या परचेज के साथ जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही डालते हैं। सो वेजेस एंड सैलरी अगर हेड होगा, ये दो तरह की चीजें, इसको बड़े ध्यान से देखना है। वेजेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वेजेस एंड सैलरीज अगर होगा तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर सैलरीज एंड वेजेस अगर कोई खर्चा हुआ तो उसको हम P&L अकाउंट में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो वेजेस रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा होता है। कैरेज इनवर्ड्स या फ्रेट इनवर्ड्स, ये दोनों खर्चे परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। गैस एंड फ्यूल, पावर एंड वाटर, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई खर्चे, ये सारा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है। और इनकम में क्या आएगा? बाय सेल्स, सेल्स से हम नेट सेल्स निकालेंगे। अगर कोई सेल किया है गुड्स और उसमें से कुछ वापस अगर आया हुआ है सो उसको माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न। देन क्लोजिंग स्टॉक, जो इस साल का बचा हुआ रहेगा आफ्टर ऑल द परचेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है वो गुड्स जो हमारे अभी बच गए हैं वो। एंड देन ग्रॉस लॉस, अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा है तो हमारा ग्रॉस लॉस आएगा बैलेंस, या अगर हमारा सेल्स एंड ये क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये जो ग्रॉस लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। A business will incur many other expenses in addition to direct expenses. सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से क्या इसको बोलते हैं। सो उससे जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो हम कैरिड फॉरवर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसके बाद हम उसमें सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को डालते हैं। उसमें से जो हमारा बचता है दैट इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। सो नेट प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम। सो प्रॉफिट में भी डिवाइडेड इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट जो भी एक्सपेंसेस जो हमें ये बिजनेस को ऑपरेट करने में एक्चुअली इन्वॉल्व है। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, ये सारे खर्चे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, या चैरिटी में कुछ पैसे दिए गए हैं, डोनेशन दिया गया, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस बाय फायर एक्सेट्रा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो इनकम होते हैं जो जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट का सेल हुआ है, उससे अगर कोई प्रॉफिट हुआ है, सो दोज आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स सब। अच्छा, जो क्लोजिंग एंट्रीज है, जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग एंट्री के बारे में बात की थी, ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ये क्लोजिंग एंट्रीज हैं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग एंट्री है वो है
प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस को हम ग्रॉस प्रॉफिट जो हो रहा है उसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सिमिलरली जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा लॉस हो रहा है उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में. ठीक है. सो इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट जरा देख लेते हैं. टू ग्रॉस लॉस, अगर लॉस हुआ तो हम कैरिड डाउन करते हैं, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड होता है. और ग्रॉस प्रॉफिट अगर होता है ये भी क्रेडिट साइड में ब्रॉड फॉरवर्ड होता है. नाउ जो खर्चे होते हैं वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे ऑपरेटिंग खर्चे हैं. टू सैलरीज, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरी एंड वेजेस. हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस एंड सैलरी, और इसमें हम पढ़ रहे हैं सैलरीज एंड वेजेस. पोस्टेज एंड टेलीफोन, ऑफिस लाइटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, traveling expenses, selling and distribution expenses, and carriage and freight outwards. जो carriage and freight inwards होता है वो डायरेक्ट खर्चा होता है, परचेज से रिलेटेड होता है, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं. लेकिन अगर कैरेज एंड फ्रेट आउटवर्ड्स होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं. अब सिमिलरली हम क्रेडिट साइड में जो इनकम होता है वो भी देख लेते हैं. रेंट रिसीव्ड, अगर हमने कोई रेंट किसी को दिया है, उससे हमको रेंट मिल रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी दिया है, या डिस्काउंट रिसीव्ड, या बाय रिबेट्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड, बैड डेट्स रिकवर्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया. मिसलेनियस रिसीट्स. सो दीज आर ऑल द रिसीट्स दैट आर अकाउंटेड फॉर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कुछ और खर्चे भी हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है. तो कमीशन है, ब्रोकरेज, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग, ये बच्चों ये आप रेफर कर लेना, देख लेना. ये बहुत सारे खर्चे होते हैं. इसमें डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट भी है. उसके बाद कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डाले गए हैं. लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डोनेशन, चैरिटी, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस. उस सारे खर्चे को हम अकाउंट करके उसके बाद जो बचता है वो होता है नेट प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में हम डालते हैं. So now coming to balance sheet. So this is the final ultimate statement that is made by any business. So a balance sheet is a statement which sets out the assets and liabilities of an entity as at a certain date. तो ये एक और चीज है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो, यानी ये पूरे साल का हमारा पूरा ब्यौरा देता है. लेकिन बैलेंस शीट जो है उसको हम बोलते हैं जिस स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन दिस डेट, यानी एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या स्टेटस होता है वो बैलेंस शीट शो करता है. सो इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स द एसेट्स ओन्ड बाय द एंटरप्राइज एंड द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स या ओनर्स अगेंस्ट दीज एसेट. सो कितना हमारे पास एसेट है और कितनी हमारी लाइबिलिटीज है जो हमें पे करना है. सो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट. सो अभी थोड़ी सी थ्योरी भी हम पढ़ लेते हैं इसमें. नीड और पर्पस फॉर विच बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट. ये एक स्टीरियोटाइप बिल्कुल पहला बहुत पॉपुलर था. नीड पर्पस हमें बताया जाता है कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. सेकेंड है टू नो द अमाउंट ऑफ एसेट इट ओन्स अंडर डिफरेंट हेड्स. जैसे फिक्स एसेट हो गया, फिर करंट एसेट हो गया, डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया. तो इस हेड में जो भी हमारे एसेट्स हैं वो हमें बताया जाता मतलब बैलेंस शीट शो करता है. थर्ड है टू नो द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इट ओज टू द आउटसाइडर एंड द प्रोप्राइटर. फोर्थ है इट शोज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर. जो ओपनिंग मतलब प्रोप्राइटर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है कैपिटल के तहत, और ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर, उसने अपने लिए जो ड्रॉइंग्स विड्रॉ किए हैं, एंड द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर. अगर उसने कुछ नया भी कैपिटल डाला है तो वो भी शो करता है.
फिफ्थ है, इट इज अ बेस फॉर ओपनिंग एंट्री फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. सो बैलेंस शीट जब नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर किया जाएगा या जो भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नेक्स्ट ईयर बनेंगे, उसमें जो ओपनिंग एंट्रीज डलेंगे वो यहाँ से बैलेंस शीट से ही लिया जाता है. जब हम क्लोजिंग एंट्रीज जो होता है, दैट बिकम्स द ओपनिंग एंट्रीज फॉर द नेक्स्ट ईयर. सिक्स्थ है, इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग वेदर फर्म इज सॉल्वेंट और नॉट. ओके, सो इसका भी हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं जल्दी से. सो लाइबिलिटीज एंड बैलेंस शीट एज of dash and dash as at this date 31st March so and so. ठीक है. So liabilities होता है, राइट साइड में होता है एसेट. So liabilities में क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, दैट इज द कैपिटल दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर, प्लस हम नेट प्रॉफिट डालते हैं जो कि हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, वो कैपिटल में ट्रांसफर होता है. वहां पे हमने कैपिटल ट्रांसफर एंट्री किया था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे ये दिखता. अगर नेट लॉस है तो इसको लेस करते हैं, लेस ड्रॉइंग्स दैट हैज बीन टेकन बाय द प्रोप्राइटर. फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अगर मैंने कोई बैंक से लोन लिया है या कहीं बाहर से लिया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन से लिया है, दैट इज शोन हियर. फिर करंट लाइबिलिटीज, दैट इज इनकम इफ रिसीव्ड इन एडवांस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. ये मेन हेड्स यही होते हैं. अब एसेट साइड में होता है फिक्स एसेट, दैट इज गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी. फिर इन्वेस्टमेंट होता है. करंट एसेट्स में आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. सो दिस इज व्हाट वी हैव टच्ड एवरीथिंग. लाइक फॉर्मेट भी हम लोगों ने देख लिया, थ्योरी भी हमने कर लिया है, और एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है कि बेसिकली ये क्या होता है. नाउ नेक्स्ट, इन माय नेक्स्ट वीडियोस वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एक्चुअली, तब समझ में और भी अच्छे से आएगा. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.